Good afternoon, everybody. Welcome to session 4 of this series. And before we proceed, just some housekeeping rules. Please be mindful of your mics. Please keep your mics on mute. May I please request all participants to check their mics before we begin so that you can ensure that it is on mute. Thank you. Arun, Dr. Rajam will be sharing the slides from her side. May I request Sarvajit to please mute her mic? And also somebody, okay, thank you very much. तो आज का टॉपिक है एंड ऑफ लाइफ केयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक. आज की लीड फैसिलिटेटर हैं डॉक्टर राजम अय्यर, जिनसे आप कल भी मिले थे. She is a pulmonologist and palliative care physician with Bhatia and Hinduja Hospital. उनके साथ है फैसिलिटेटर्स डॉक्टर राजश्री, जो जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख सक रहे हैं. And she has a fellowship in palliative medicine. She's a palliative care trainer. She has worked very closely for many years with the Trivandrum Institute of Palliative Sciences, and we have learned a lot from her. And she's the one who put together this part of the resource toolkit. We also have Dr. Roop Gursahani, who is one moment. Am I audible to you now, Raji? Is the audio clear, Rajam? Yes. All right. Okay, great. The second co-facilitator for today is Dr. Roop Gursahani, who is a consulting neurologist with the Hinduja Hospital, and also a founding member of ELICIT, which stands for... One moment, sorry. I'm just going to wait for everybody to mute themselves. Thank you. Arun, can you please check from your side? Yes, ma'am, I'm checking. Actually, those who joined with the Galaxy A20s, please mute yourself. Am I audible? Yes, ma'am, it's audible. Yes. All right. Sorry about that. I was just introducing... Am I audible? Yes, Dr. Raji. Oh, I can't hear anything. You're audible, Dr. Raji. Sorry, I'm just going to carry on. So I've been stuck at introducing Dr. Roop Gursahani. He is a consulting neurologist with Hinduja Hospital, and he's also a founding member of ELICIT. ELICIT एक organization है जिसका full form है End of Life Care in India Task Force. They have been very deeply involved with advocacy for appropriate end-of-life care in India, and we are grateful that he's here to co-facilitate with us. I'm now going to hand over to Dr. Raji to do a recap of yesterday's session, after which we will hand over to Dr. Rajam Aiyar. Thank you, Smriti. Good afternoon, dear friends and the faculty members.
I am Dr. Rajashree speaking from Calicut, Kerala. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. My sincere apologies that I am not able to speak in Hindi, though it's the national language for me too. So I will do the recap in English. So this week started with palliative care in the context of COVID-19 pandemic. Here we have seen on the first session the relevance of palliative care and the importance of appropriate triaging so as to deliver better quality of care to the patients and better quality of life to the family members. And also we have seen in the symptom management session, which was on Tuesday, how effectively we can control symptoms like breathlessness, agitation, fever, and pain using simple drugs, like morphine, which is particularly relevant in management of breathlessness because of its unique effects on, respiration. And in the last session, which was done on yesterday by Dr. Biju Raghavan, we saw that communication is a very vital component of any healthcare scenario. It is very common to our day-to-day life, but it can be highly complex. And it poses challenges, particular challenges with respect to COVID-19 pandemic because of the special reason contained in that. And the session also found how can we overcome these challenges by doing certain do's and avoiding certain don'ts. And we have also observed the spike protocol for breaking bad news in difficult situation. And also we have seen Kubler-Ross models of stages of grief, that is DABDA. Can someone put on the chat box what is DABDA? डॉक्टर राजेश्री बोल रही हैं कल कुबलर रॉस के ग्राफ में जो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ डिस्कस किया था डॉक्टर बीजू ने, क्या कोई है जो एटलीस्ट मतलब कलेक्टिव एफर्ट से सब लोग एक एक का विस्तारण में चैट में डालें कि क्या है एग्जैक्टली? Okay, denial. Ankush is telling denial. So one D is over. Anger, very good, very good. Very good. Yes. Denial, it is not senile. Denial, anger, bargaining, depression and acceptance. Very good, very good. Denial, anger, bargaining, depression and acceptance. It's very good. And Biju has also mentioned about managing anger, which is a very challenging situation. It can create lot of conflict and how to, how to be clever, not to get angry by yourself, and how to, he had shared some tips for managing anger effectively. How one can diffuse anger so that you can calm down the other person and make him sit and talk and share the information and his, like dilemma or, concerns, whatever it is. And he had mentioned also but certain tips for managing self-care as well. In today's session, we are going to see another important but overwhelming scenario like end-of-life care. End-of-life care in the routine healthcare setup itself is quite challenging and distressing, both for the family as well as the professional caregiver. In COVID-19, it poses additional challenges. So even with simple tactics and effective communication strategies and supportive measures, we can manage end-of-life care also because it is so serene and unique to one individual. And unfortunately, it has been so much hospitalized in the present scenario. So today we are going to see how effectively we can deliver end-of-life care in the context of COVID-19 pandemic. We have our distinguished speaker, Professor Rajam Iyer, to deliver the talk. Over to you, madam. Thank you all. थैंक यू राजेश्री. नमस्कार सबको एंड सबका स्वागत है एंड स्पेशल थैंक्स टू पैली कोविड केरला टीम जिन्होंने बहुत मेहनत और लगान से पूरा ई बुक बनाया है एंड ऑल ये जो स्लाइड्स प्रेजेंटेशन है वो उन्हीं के मेहनत का फल है. डॉक्टर राजेश्री जिन्होंने अभी इंट्रोडक्शन और रीकैप किया उन्होंने ही ये स्लाइड्स बनाए हैं, तो उनके लिए भी एक स्पेशल थैंक्स. आप लोग सब 4 दिन से आ रहे हैं यही इसी वक्त पे, इसके लिए भी थैंक यू बिकॉज आई थिंक आपके आने से हमको भी प्रोत्साहन मिलता है, हमें भी नया कुछ सीखने मिलता है. आपको सबको याद होगा कि हम एक पेशेंट रमेश और उनके परिवार के साथ चल रहे हैं ये हफ्ता, और अभी हम उसी मामले में उसी कॉन्टेक्स्ट में एंड ऑफ लाइफ यानी जीवन का अंत
इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जस्ट शुरुआत करने के लिए मुझे ये पूछना है आपसे, आप लोग सबसे, कि ये जो पूरा सेशन होगा उसमें हम लोग मृत्यु के बारे में, मौत के बारे में बात करेंगे, और स्पेशली मौत के पहले पेशेंट्स को कैसे संभाला जाना चाहिए, और फोकस ये रहेगा कि कोविड-19 के सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं पेशेंट और पेशेंट के फैमिलीज को एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा देने में, क्योंकि देयर इज सबके मन में डर है, भय है, और बहुत सारा एंजाइटी है। तो ये सेशन का उद्देश्य यही होगा। तो जस्ट टू स्टार्ट विथ, मेरे को ये पूछना है आप लोगों से, क्या आपने कभी मौत के बारे में सोचते हैं? सेकेंडली, क्या खुद के मौत के बारे में आपने कभी सोचा है, या किस तरीके से होगा, या किसी और के मरने का आपको क्या असर होता है, या उनके जैसे उनके द वे दे डाई, वो किस वजह से मरते हैं, कैसे मरते हैं, क्या ये सब आप सोचते हैं? क्योंकि कभी कभी मैं सोचती हूँ, जब हम लोग डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह हैं, जो सबसे करीब हैं पेशेंट्स के साथ, जिनके सफरिंग, पीड़ा के साथ हम हैं, बीमार लोगों के साथ हैं, फिर भी हमारी ट्रेनिंग में कोई भी मौत का प्रोसेस के बारे में बात करने के लिए कोई सिखाता नहीं है, कम्युनिकेशंस करने सिखाता नहीं है, जैसे हमने कल देखा, और स्पेशली मृत्यु के बारे में हमको कोई सिखाता ही नहीं है। क्या हम अपने आप अनकंफर्टेबल हैं ये टॉपिक पे डिस्कस करने की? कोई है जो बता सकता है कि आप कैसे सोचते हैं? कभी आपने सोचा है खुद के मौत के बारे में? क्योंकि मैं जब बड़ी हुई तो मैंने हमेशा मेरे नाना जी को सुनते हुए देखा है कि अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम। तो वो हमेशा भगवान के सामने यही प्रार्थना करते थे कि बिना कोई दर्द के मृत्यु हो जाए, और जिंदगी बिना कोई डिजीज के चला जाए। तो ऐसा कोई आदमी ही नहीं होगा दुनिया में जो भगवान के सामने या उसके ईश्वर के सामने जाके बोले कि भगवान मुझे आईसीयू लेके जाना, भगवान मुझे सब कुछ किसी भी हालत पे जिंदा रखना। तो आपके इस विषय में कुछ एनी सजेशंस, कुछ आपके कुछ विचार कुछ हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। प्लीज लेट इट बी इंटरैक्टिव सेशन, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, थोड़ा हैवी है, हम एक दूसरे के साथ रह के नॉलेज शेयर करके आगे बढ़ेंगे। तो आप में से कोई है जिन्होंने सोचा है अपने मौत के बारे में, या कैसा होना चाहिए, या किसी के मौत के होने के बाद आपको बहुत दुख लगी हो? अगर कुछ है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। डॉक्टर रूप और डॉक्टर राजेश्री आपका आंसर देंगे। तो डॉक्टर रूप, प्लीज टेल मी इफ आई शुड गो ऑन और हैंग ऑन। एक सवाल सबसे पूछ सकते हैं अभी कि आपको अंदाज से पता है कि से समझ लो अगर जिसकी उम्र हो जाती है 50 के बाद, अचानक मृत्यु कितने लोगों की हो सकती है? अचानक, कि रात को सो गए और सुबह नहीं है, या अचानक हार्ट अटैक हो जाए, कितने बार ऐसा होता है? I think you continue, Rajam. Let's let them think about it. ये आप सोच के अगर कोई चैट बॉक्स में अंदाज बता सके। Sure. तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हम रमेश जी और उनके परिवार के साथ चल रहे हैं ये पूरा हफ्ता, और रमेश जी का सिचुएशन अभी और बदतर हो गया है। और मुझे याद है कि डॉक्टर रजनी के सेशन में जब उन्होंने पूछा था कि आगे क्या करना चाहिए, टीम ये जो ग्रुप था थोड़ा डिवाइडेड था कि आईसीयू ले जाना चाहिए या आईसीयू नहीं ले जाना चाहिए। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, और इट इज इम्पोर्टेंट कि पेशेंट का राय और पेशेंट की फैमिली का राय लिया जाए। पर पेशेंट और पेशेंट का फैमिली अपना राय तभी दे सकते हैं जब डॉक्टर अपने हिसाब से उनके लैंग्वेज में, उनके भाषा में, उनके लेवल में पेशेंट का क्लिनिकल मेडिकल कंडीशन एक्सप्लेन करे, ताकि पेशेंट और फैमिली दोनों की समझ में आए और वो लोग फिर अप्रोप्रिएट अपना डिसीजन ले पाए। इसके लिए हमने कल देखा कि कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? सो हम ये किस के लिए इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको डॉक्टरी ट्रेनिंग में ये बताया गया है कि हम जान बचाते हैं, हमको कुछ भी करके जान बचाना है। बट ये सर्वे एक पब्लिश हुआ था 2015 में लैंसेट जर्नल में, जिसमें उन्होंने क्वालिटी ऑफ डेथ इंडेक्स का रिकॉर्डिंग किया था। उन्होंने कुछ पैरामीटर्स चुने थे जिससे विदेश 80 कंट्रीज से की क्वालिटी ऑफ डेथ रिकॉर्ड किया गया था, एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया उसमें से 67th था, विच मींस अपने पीछे सिर्फ 13 कंट्रीज थे जो हमसे वर्स थे। और जो पैरामीटर्स उन्होंने चेक किया था
वो था कि पैलिएटिव केयर अवेलेबल है कि नहीं, और कितना लोगों को खर्चा करना पड़ता है एंड ऑफ लाइफ पे, और क्या केयर मिलता है। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया काफी कम रैंक करती है क्वालिटी ऑफ डेथ। इसीलिए हम सबका जिम्मेदारी बनता है कि हम मरते हुए पेशेंट्स का कैसे ख्याल रख रहे हैं। और इस एंड बिकॉज वी नीड, ये हमको ध्यान रखना ही है कि मौत और मृत्यु इट इज अपरिहार्य, वी इट इनएविटेबल है, सबके जिंदगी में एक दिन आने ही वाला है। और बुरा मौत, मतलब एकदम तड़प तड़प के पीड़ा मौत जो है, वो एक चीज है जो डॉक्टर, पेशेंट और फैमिली बैठ के डिस्कस करके हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। बैड डेथ इज अवॉइडेबल, बट ये मौत जो है, वी इट इज समथिंग वी हैव टू एक्सेप्ट कि सबको हो सकता है। करेक्ट? सो बिकॉज इंडिया रैंक सो पुअरली इन द क्वालिटी ऑफ डेथ, हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके बारे में सोचें। और जैसे कोई नया जन्म होता है हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही जिंदगी के दो पहलू हैं, जिंदगी और मौत। सो एक ही कॉइन के दो साइड हैं, जिंदगी और मौत। और जैसे हम नया शिशु को इनवाइट करते हैं खुशी से, वैसे ही हमको मौत और मृत्यु के बारे में भी सोचना है। बिकॉज ये एकदम इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि जो भी जन्म लेगा वो मौत भी लेगा। बट हमको ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया जाता है, इसलिए हम अनकंफर्टेबल रहते हैं। और हमको ट्रेनिंग में ये बार बार जताया जाता है कि हम जिंदगी बचाते हैं, बट हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ और जिंदगी का क्वांटिटी से ज्यादा फोकस करना है। करेक्ट? सो इस कोविड सिचुएशन में, अभी नॉन कोविड सिचुएशन में वक्त मिलता है, जैसे पेशेंट को से अल्जाइमर्स डिमेंशिया हो, या पार्किंसंस हो, या कोई क्रॉनिक रीनल कंडीशन हो। जैसे मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ, स्मोकिंग, सिगरेट के वजह से जो फुफ्फुस की बीमारियां लगती हैं, उसमें पेशेंट 8 साल 5 साल तकलीफ में रहता है। हम डॉक्टरों को टाइम मिलता है वो पेशेंट से बात करने का कि वो आगे कैसे जीना चाहता है। ये बात होती नहीं है ऑफन, ये मानती हूँ, आजकल इतना कॉमनली होता नहीं है। बट वी पैलिएटिव केयर का जो एफर्ट है वो यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी इंटरवीन करें, और पल्मोनोलॉजिस्ट, छाती के डॉक्टर, फेफड़ों के डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर के साथ काम करके ऐसे पेशेंट्स और फैमिली को सपोर्ट करें। बट ये कोविड-19 के सिचुएशन में ये सब बदल जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कैसा बदला है ये सिचुएशन? क्योंकि एंड ऑफ लाइफ केयर या जीवन का अंत का जो केयर है वो कोविड-19 सिचुएशन में कैसा बदला है? कोई बता सकता है चैट पे? क्योंकि ये कोविड-19 बड़ी स्ट्रेंज बीमारी है, क्योंकि सडनली लोग बीमार होते हैं, सडनली लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, और फिर फैमिली से सडनली दूर होना पड़ता है। तो 2-3 पॉइंट्स जो आपके मन में आता है, आप चैट बॉक्स में डालिए, डॉक्टर रूप और डॉक्टर राजेश्री आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। In the chat box, it's mentioned that couple of comments like they don't want to have a prolonged or bedridden life. So, the people who had mentioned that they prefer to have all on a sudden death. So then Dr. Roop was suggesting how many of the patients they get sudden death as we think. So the options are coming up. Some, I have mentioned 5 to 10%. The other person has mentioned 10 to 20%. And then another comment was like, in the last stage, one patient was because of the distress, he or she was telling, "Humko poison do, give me some poison injection so as to put an end to my life." So I was just commenting, will you give or not? Whatever be your action, why you are hesitant to do so, or why you are willing to do so. So for both answers, there should be some reasons. So it stops there. Let me look at the chat box again. Sure. So then, Roop, you want to add something? Yeah. So आप में से जिसने कहा कि पॉइजन देने के बारे में किसी ने मांगा है, बेसिकली उन्होंने क्यों मांगा है? क्योंकि उनकी पीड़ा है जो हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। और ये पीड़ा हम क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर सकते? फ्रैंकली अगर मैं बताऊं तो मेरा मानना है कि ये क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है इसके लिए, ये पीड़ा कैसे हैंडल की जाए। क्योंकि अगर ये पीड़ा बराबर से हैंडल करी जा सकती है तो
पॉइजन की बात आती नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि हम जब लगे रहते हैं कोशिश करने में उनको बचाने की, तो कभी कभी ये नजर से छूट जाता है कि ये बचना होने नहीं वाला है, लेकिन मौत लंबी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। जैसे डॉक्टर राजेश्री और डॉक्टर रूप ने बताया कि ये कोविड-19 के सिचुएशन में क्योंकि बीमारी बहुत जल्दी फैलती है और हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, पेशेंट प्रिपेयर्ड नहीं रहता है अक्यूटली बीमार होने का, फैमिली प्रिपेयर्ड नहीं रहता है, पेशेंट और फैमिली अलग अलग रहते हैं, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? उनके साथ, दोनों के साथ बात करने का वक्त भी नहीं मिलता है, प्लस जगह जगह से इंफॉर्मेशन आती है, तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं पेशेंट, और डॉक्टर लोग भी पीपी पहन के, पर्सनल प्रोटेक्शन पहन के बात करते हैं, तो वो भी बहुत इजी तरीका नहीं होता है वार्तालाप करने की, और पेशेंट भी काफी डिस्ट्रेस, एंग्शियस, घबराहट में रहता है। तो कोविड-19 के सिचुएशन में थोड़ा एंड ऑफ लाइफ केयर और भी चैलेंजिंग हो गया है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो पैंडेमिक है, इसमें एक दो पेशेंट नहीं, हजारों पेशेंट्स एक साथ आते हैं, तो ना सिर्फ पेशेंट्स तकलीफ में है, डॉक्टर्स तकलीफ में है, नर्सेस तकलीफ में है, हॉस्पिटल्स तकलीफ में है, और पेशेंट्स को कभी कभी बेड भी नहीं मिलता है, तो एंड ऑफ लाइफ केयर बहुत बहुत चुनौती हो जाता है, और इसीलिए हमको इस बारे में बात करना जरूरी है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इस पे आ रहे हैं कि ये जो डिक्लेरेशन किया है, डेफिनेशन है, एक पेपर है जो 2018 में पब्लिश किया था, कि हम उन पेशेंट्स को सिलेक्ट करके आईसीयू में एडमिट करना चाहिए जिन पेशेंट को एग्रेसिव ट्रीटमेंट, ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट देने के बाद अगर वो पेशेंट को फायदा है, वो पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा, वो पेशेंट की जिंदगी ओरिजिनल जिंदगी जैसे होगी, तो हम वैसे पेशेंट्स को आईसीयू में रखना चाहिए। जो पेशेंट ऑलरेडी बेड रिडन है, जो ऑलरेडी काफी सालों से बीमार है, जिसका किडनी, मेन एक दो ऑर्गन ऑलरेडी फेल्ड है, क्या हम ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू में रख के, डायलिसिस करके, वेंटिलेटर करके जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या वो सही है? काफी लोगों का ये मानना रहता है कि हम अगर पेशेंट को नहीं लेके जाए तो पेशेंट मर जाएगा। क्या ऐसे पेशेंट को लेके जाने के बाद पेशेंट नहीं मरता है? पेशेंट्स जिनको हम प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं करते हैं, उनका आउटकम भी पुअर रहता है। तो ये जो है हमारा उद्देश्य क्या है? पेशेंट को कंफर्ट देना, वो चीज करना जिससे पेशेंट को नुकसान नहीं हो, वो चीज करना जिससे पेशेंट को फायदा हो, वो करना इज नॉट इक्वल टू पेशेंट को मार डालना। अगर हम पेशेंट का दुख, पीड़ा कम करें और पेशेंट को कंफर्टेबल रखें, दैट इज नॉट इक्वल टू किलिंग। हमारा उद्देश्य पेशेंट का कंफर्ट है। बट इस सब चीज करने के लिए पेशेंट के फैमिली को बीमारी की जानकारी, बीमारी का पूरा नेचुरल कोर्स, अगर बीमारी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है, मिलना चाहिए। डॉक्टर लोग बैठ के समझाना चाहिए, और डॉक्टर, पेशेंट और फैमिली के बीच पूरा डिस्कशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये डॉक्टर का खुद का मन घड़न नहीं होना चाहिए कि अभी मैं आईसीयू में नहीं ले जाने वाला हूँ, क्योंकि ये जिंदगी पेशेंट की है, हक पेशेंट का है, पेशेंट को डिसाइड करना चाहिए। और हम लोग जो डॉक्टर हैं, हम लोग 2 मिनट बैठ के पेशेंट को पूछना चाहिए, आप क्या चाहते हैं आपकी जिंदगी के साथ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग में से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक शर्ट, टी शर्ट या वॉच किसी और के जबरदस्ती पे पहने। करेक्ट? हमको पसंद आए, हमारा हक है तो हम खरीदते हैं। ये जिंदगी भी उनका हक है, शरीर उनका हक है, उनका राइट होना चाहिए ये डिसीजन लेने के लिए। तो ये एक अच्छा पेपर है जो पैलियम इंडिया शायद आपको फॉरवर्ड भी करेगी, बट हम आपको रिसोर्सेस एंड में दे रहे हैं, तो आप प्लीज पढ़िए ये पेपर को। बिकॉज ये, आप अगर पेशेंट को आईसीयू नहीं लेके जा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंट को मरने का ये दे रहे हैं, आप पेशेंट को कंफर्टेबल रखना। सो इसका उद्देश्य, इंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हुए, तो प्रिंसिपल्स जो है जीवन के अंत में इज टू कंफर्ट द पेशेंट। पेशेंट का आराम सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, एंड देयरफॉर डॉक्टर्स और नर्सेस क्या कर सकते हैं जो पेशेंट्स को कंफर्टेबल रखे। अननेसेसरी, क्योंकि बहुत हमने सुना है पेशेंट को ट्रैकियोस्टोमी करना है, पेशेंट्स का पेग फीडिंग करना है, पेट में ट्यूब डालना है या गले में ट्यूब डालना है, या फिर बोलते डायलिसिस करना है। पेशेंट, हमको पता है कि 2 दिन से यूरिन आउटपुट नहीं है, तो हमको सोच समझ के ये देखना है, क्योंकि कल
हम वो जगह पे होने वाले हैं, वी नीड टू, हम या हमारे कोई फैमिली मेंबर वही उसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, क्योंकि इसका किसी का एस्केप नहीं है। और ये सब करने के लिए पेशेंट के साथ बातचीत, पेशेंट के साथ एक कम्युनिकेशन, एक रैपो होना चाहिए, और जो भी वो डिसीजन ले हम उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि वेरी ऑफन डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, या आपका डिसीजन है, मैंने तो बोला था ऐसे करना है। तो ये हाई हैंडेडनेस जो है कि मैं डॉक्टर हूं आप पेशेंट है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम एक ही लेवल पे हैं और हम उनको इंफॉर्मेशन देके, उनका साथ देके, उनका जो डिसीजन, जो भी निर्णय लेते हैं उसमें सपोर्ट करने की जरूरत है। और अगर आप में से किसी भी लोग ने इस सिचुएशन से गुजरे हैं, कोई आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी नजदीकी इस सिचुएशन से गुजरे हैं, तो आपको पता रहेगा कि कितना स्ट्रेस, कितना क्या बोलते हैं, मनो स्ट्रेस होता है। और साथ साथ में गुस्सा, प्यार, कंफ्यूजन, डिसीजन लेना नहीं होता है। क्योंकि डॉक्टर होते हुए कभी कभी हम असमंजस में पड़ जाते हैं, तो जो नॉन डॉक्टर फैमिलीज हैं वो तो कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे डॉक्टर साहब आप जो सही समझे करें। और इस बहाने में काफी चीज ऐसे होती है जो शायद पेशेंट को फर्क ही नहीं पड़ता है, शायद पेशेंट को बेनिफिट ही नहीं होता है। डॉक्टर रूप, यू वांट टू ऐड समथिंग? Yeah, so sorry. No. I was just, going through the chat box as the answer to a query like what is so special about end of life care in COVID-19 pandemic. The responses from the chat box are, many of those were listed in the PowerPoint later, like anxiety and uncertainty among the family members and the professionals regarding the trajectory and the days left, and isolation which the patient and the family, both parties, they feel, and the trauma, the psychological trauma associated with that. And then regarding the injection of poison, there is no time for preparation as well, because the trajectory runs quite fast compared to other chronic illnesses. And then regarding the injection, one person has commented like, euthanasia, and another person has commented like, it is to give freedom from suffering. So, Roop, would you like to comment more on that in Hindi? Yeah. So basically, And, sorry, I'll take on. Yeah. So no, please. Okay, thanks, Raj. So basically ये इसमें ऐसा होता है कि आपको पीड़ा संभालनी है। पीड़ा संभालने के लिए जो भी टेक्निक्स हैं, और ये पीड़ा ट्रीट करना, ये एक ट्रीटमेंट ही है। डॉक्टर राजन भी आपसे डिस्कस करेंगे और आप ये पूरे इसमें आप समझ भी रहे हैं। लेकिन ये पीड़ा ट्रीट करने में सबसे पहले ये आपको समझना है कि हम इसमें पेशेंट की ट्रीटमेंट जो शुरू एक बार जो हो जाए तो उसको हटाना, कि अगर समझ लो पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा है तो उसको वेंटिलेटर से हटाना, ये फैमिली के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए सबके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर पहले से आप सोच के रख लो कि इस पेशेंट को आप वेंटिलेटर पर नहीं रखोगे, आप इनको आईसीयू में नहीं लेके जाओगे, तो ये विदहोल्डिंग होता है। और आईसीयू में डाल के वेंटिलेटर से निकालना या आईसीयू से निकालना, उसको हम विड्रॉल बोलते हैं। विदहोल्डिंग एंड विड्रॉल, एक्चुअली अगर देखा जाए तो लीगली, मॉरली, एथिकली इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जैसे डिस्कस करो तो आप समझ जाओगे कि जो विदहोल्डिंग है वो एक तरह से उसका इमोशनल बोझ कम रहता है। लेकिन जो हो चुका है, जो शुरू हो चुका है, उससे हटाना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए वी प्रेफर, इसलिए आज तक ये जो आपको जो डिस्कशंस हुए हैं, ये बेसिकली आपको ये समझाने के लिए कि अगर विदहोल्ड करे तो फिर उसके बाद पेशेंट को कैसे संभाला जा सकता है, वो आपको बता रहे हैं। दूसरा एक छोटा सा सवाल पहले मैंने पूछा था कि अगर कोई इंसान 50 की उम्र क्रॉस कर जाता है तो उसको, उसके नसीब में क्या नंबर लिखा हुआ है अचानक मौत आने की। एक्चुअली ये रिसर्च है, यूएस से, इंडिया से नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हमारे फिगर कुछ ज्यादा नहीं है।
डॉक्टर राजश्री ने 5 to 10% बोला था, वो फिगर एक्चुअली वो स्टडी में 7%। तो 93% पीपल, अगर आप 50 की उम्र जब क्रॉस हो जाए तो 93% चांस है कि सडन मौत नहीं है। राजम? तो डॉक्टर रूप का कहने का मतलब है कि हम में से ओनली 1 in 7 93% हम में से लोग विल गो थ्रू बहुत लंबा सफरिंग होगा, लंबा पीड़ा होगा। इसलिए हम ऑलरेडी हमको और हमारे पेशेंट्स को ये सोच के चलना है कि हमको कैसे जीवन का अंत करना है। तो जब डॉक्टर राजेश्री ने बोला कि किसी ने यूथेनेसिया के बारे में बोला है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। हमारा उद्देश्य, नर्सेस और डॉक्टर्स का उद्देश्य ये है कि पीड़ा कम करना है। हम भगवान नहीं है कि किसी की जिंदगी ले, हमको पीड़ा कम करना है। हमारा उद्देश्य कंफर्ट है, आराम देना है। और उसका मेन जो बेसिस है वो है कि पेशेंट क्या चाहता है, पेशेंट का फैमिलीज क्या चाहता है, पेशेंट और फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करना और कम्युनिकेट करना। और उसके बाद जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट है, जैसे डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर रूप ने, इंटेंसिव केयर है, वेंटिलेटर है, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है, डायलिसिस है, ये सब अग्रेसिव ट्रीटमेंट जो जिंदगी को सिर्फ लंबा करती है, उसको विथड्रॉ नहीं देके या एक बार देने के बाद कैसे निकाला जा सकता है, उससे निकाल के एग्रेसिव ट्रीटमेंट से हम कैसे पैलिएटिव ट्रीटमेंट पे जाए। पैलिएटिव का मतलब हुआ सपोर्टिव या टू कंफर्ट। वेरी ऑफन अगर पेशेंट्स को बता दिया जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बट पैलिएटिव केयर में ये सिखाया जाता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पेशेंट और फैमिली को कंफर्ट दे। और उसी का हम फोकस कर रहे हैं आज कि पेशेंट और फैमिली को, सपोज उन्होंने डिसाइड किया कि एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं फिनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। नॉट शारीरिक ही नहीं, बट मनोबल से भी, आर्थिक में भी। और उनका जो भी कंफ्यूजन है, हम एटलीस्ट अगर सॉल्व नहीं कर सकते, पूरी तरह हल हमारे पास भी नहीं है क्योंकि हम भगवान नहीं है, बट एटलीस्ट उनका तकलीफ सुन सकते हैं, एटलीस्ट उनका तकलीफ, पीड़ा शेयर कर सकते हैं। तो यही है पैलिएटिव केयर का मेन फंक्शन। और अगर हम पैलिएटिव केयर टीम को इन्वॉल्व करें तो वो पूरा सपोर्ट देते हैं, पेशेंट को बीच में रख के, पेशेंट का क्या बोलते हैं, पेशेंट की जो विश्वास है, पेशेंट जो चाहता है वो करके, और पेशेंट के एंड, पेशेंट के मौत तक सपोर्ट करके, और पेशेंट्स के फैमिली को मौत के बाद, जिसे बेरीवमेंट बोलते हैं, वो भी एंड ऑफ लाइफ केयर में आता है। तो हम सिर्फ पेशेंट मरने के बाद टाटा बाय बाय नहीं बोलते हैं, पेशेंट के फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोविड सिचुएशन में, बिकॉज पेशेंट और फैमिली एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द हाई इन्फेक्शन। सो हम क्या करना चाहते हैं कि कैसे करते हैं हम ये मैनेजमेंट। सो फर्स्ट थिंग इज, हम शारीरिक कंप्लेंट्स को कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि एज डॉक्टर्स, एज नर्सेस हमारे पास दवाइयां हैं, इनके बारे में आपने ऑलरेडी मंगलवार को सुन लिया है। बट एंड ऑफ लाइफ केयर में कैसे मैनेज करते हैं ये हम थोड़ा आपको बताएंगे। और मोस्ट कॉमनली ये सिम्टम्स हैं, जैसे सांस फूलना, पेशेंट बहुत हड़बड़ाहट में रहना, घबराहट में चिल्लाना, दर्द, बुखार, बहुत सारा बलगम या मुंह से सिक्रीशंस निकलना, या पेशेंट पड़े पड़े अल्सर होना। दो कोविड इतना अक्यूट सिचुएशन है कि काफी टाइम तक अल्सर वगैरह होना थोड़ा कम चांसेस है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये कैसे एड्रेस करें, ये सब जो तकलीफें पेशेंट्स को है फिजिकल, वो कैसे एड्रेस करें। तो आपने देखा होगा कि मॉर्फिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली जो सांस फूलती है ऐसे पेशेंट्स को। और हम लोग सबक्यूट इंजेक्शन, मतलब चमड़े के नीचे, जैसे डॉक्टर राजेश्री ने आपको डिटेल में मंगलवार को बताया, चमड़े के नीचे, जिससे कम तकलीफ होती है, और सपोज वो सुई निकल भी जाता है तो खून नहीं बहता है, इजीली वापस लगाया जा सकता है। ऐसे कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन हम सिरिंज पंप से या सिरिंज ड्राइव से दे सकते हैं, जिसमें मॉर्फिन 5 मिलीग्राम, मिडाजोलैम, ताकि पेशेंट एजिटेटेड हो तो सेटल हो जाए, और फिर हम उतने देर तक देते हैं जितना पेशेंट आराम होता है। उसके बाद हम जज करके पेशेंट को कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन देते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबली नींद में रहे। अब प्लीज नोट कीजिए कि जो भी डोजेस हैं वो उतना ही डोज है जिससे पेशेंट को आराम हो, उससे ज्यादा डोज हम नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य
कंफर्ट है और हमारा उद्देश्य सिर्फ पेशेंट के तकलीफ को दूर करना है और कुछ नहीं है। क्योंकि तड़पता हुआ पेशेंट को देख के डॉक्टर लोगों को भी तकलीफ होती है, फैमिली को भी तकलीफ होती है। हालांकि आई नो कोविड पेशेंट्स के फैमिली देखती नहीं है, बट ये हमारा बेसिक जिम्मेदारी है कि हम पेशेंट को किसी भी हालत पे कंफर्टेबल रखें, चाहे इलाज नहीं कर पाए, बट आवर ड्यूटी, अपना हमारा कर्तव्य ये है कि पेशेंट को कंफर्टेबल रखना चाहिए, पेशेंट का केयर करना चाहिए, इवन हम अगर क्योर या इलाज नहीं कर पाए। तो ब्रेथलेसनेस के लिए मॉर्फिन, मिडाजोलैम या फिर कंटिन्यूअसली देना है तो आइदर मॉर्फिन या फेंटेनिल का इंजेक्शन हम चालू रख सकते हैं। अगर पेशेंट बहुत ही उत्तेजित है और खींच रहा है या क्या बोलते हैं हम, डिलीरियम जैसे बोलते हैं, तो हम इंजेक्शन हैलोपेरिडोल और इंजेक्शन मिडाजोलैम दे सकते हैं। ये भी हम चमड़े के नीचे सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं 24-24 घंटे के लिए। बुखार और दर्द के लिए पहले सिंपल सा ड्रग है जो है पैरासीटामोल। ये हम यूजुअली 0.5 या 1 ग्राम हर 6 घंटे में दे सकते हैं। एंड अगर पेशेंट ओपियोइड्स पे है, जैसे मॉर्फिन पे है दम के लिए, तो हम उसके हिसाब से एडजस्ट करके फिर पैरासीटामोल का डोज या पेन का डोज ऐसे देते हैं, और बाकी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से देते हैं। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि पेशेंट का आउटकम पुअर है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जिससे पेशेंट की मौत जल्दी हो। हम जैसे वापस बता रहे हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम सिर्फ पेशेंट को एंड तक, मौत तक क्वालिटी ऑफ लाइफ देना चाहते हैं, कंफर्ट रखना चाहते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे मौत जल्दी आए या पीछे जाए। तो दिस इज द मेन थिंग ऑफ पैलिएटिव केयर, दैट वी आर प्रो लाइफ, वी डोंट वांट टू हेसन और पोस्टपोन डेथ। वो तो किसी और का काम है, हमारा काम सिर्फ पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है, फैमिली को कंफर्टेबल रखना है, पेशेंट और फैमिली के बीच का कनेक्शन बने रहना है, और जो भी हमसे हो उनको सपोर्ट करना है। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स रूप? हाँ, राजम, इनको ये भी पूछ सकते हैं कि अगर जैसे ये कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट की मौत होनी ही है, या कई बार एक ट्रीटमेंट को लिमिट में रखने से, पेशेंट को शांत रखने से बल्कि फायदा हो जाता है पेशेंट का। would you want to comment on that? So बेसिकली डॉक्टर रूप ये पूछना चाहते हैं कि पेशेंट को ऐसे शांत रख के फायदा क्या होता है। ऑब्वियसली किस किस को फायदा होता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग सिर्फ ये करते हैं क्योंकि बुक्स में दिया जाता है कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट क्या वो पेशेंट को फायदा होता है? सो हम क्या 18 साल के पेशेंट और 80 साल के पेशेंट को सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए? हमको डॉक्टरी नॉलेज और डॉक्टरी इंफॉर्मेशन इसीलिए दिया जाता है कि किस पेशेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, दैट हमको यूज करना है, यही बताना चाह रहे हैं। इज दैट राइट रूट? हाँ, वो भी, और ये भी समझने के लिए कि पैलिएटिव केयर देने से पेशेंट का मौत होता ही है ऐसा नहीं है। बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि जिन पेशेंट्स को पैलिएटिव केयर दिया जाता है वो शांत रहने की वजह से एक्चुअली स्टेबलाइज होने लग जाते हैं और धीरे धीरे इम्प्रूव भी हो सकते हैं। सो डॉक्टर रूप का ये मेन ये जो है हम देखते हैं काफी नॉन कोविड पेशेंट्स में कि पैलिएटिव केयर देने से पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ और कभी कभी क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ता है, 2 महीना 3 महीना, वो जो सिग्निफिकेंट होता है। बट कोविड-19 में शायद हमको उतना टाइम नहीं मिलता है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप ओवरऑल जीवन का अंत का ट्रीटमेंट भी समझे, सो दैट आगे चल के आपको ये भी बेनिफिट हो। तो अभी नेक्स्ट जो ट्रबलसम सिम्टम है वो सिक्रीशंस है या बलगम जो निकलता है, वो बहुत तकलीफ हो सकती है। और हमने बहुत आईसीयूज में देखा है कि सबको एक ही सॉल्यूशन याद आता है कि हम जाके सक्शन करें,
और सक्शन करके जो ऊपर के गले का हालत होता है, जो अल्सर होता है, जो दर्द होता है, वो सिर्फ पेशेंट जानता है, हमको तो पता ही नहीं चलता है। और जब पेशेंट कभी कभी अवेक स्टेटस में भी मैंने देखा है कि सक्शन करते हैं, दैट इमेजिन अगर हम बाय मिस्टेक भी कुछ और मुंह में डालते हैं तो हमको कैसे फीलिंग होता है। तो सक्शन बार बार नहीं करने के बावजूद सिक्रीशंस कम करने की जो दवाइयां हैं, जो डॉक्टर रजनी ने बताई होगी आपको ट्यूसडे को, वो है ग्लाइकोपायरोलेट या हायोसिन। जो दवाइयां हैं ये भी हम लोग सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं। इस दवाइयों का ये तो पूरा पैकेट आपके पास है इंफॉर्मेशन और स्लाइड्स का, तो आप कभी भी इसका रेफरेंस कर सकते हैं। बट इसका मेन पॉइंट हम लोग क्यों बता रहे हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा डिफरेंटली सोचे। जो सब लोग सोचते हैं वैसा नहीं, पैलिएटिव केयर थोड़ा हटके सोचता है, बिकॉज हमारा मेन उद्देश्य है पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट केयर एंड फैमिली सपोर्ट। सिमिलरली प्रेशर इंजुरीज का कैसा करेंगे आप, तो मेनली आप कैसे स्किन को मॉइस्चर करेंगे, हो सके तो पोजीशन चेंज करेंगे, पेशेंट को एयर मैट्रेस दे सकते हैं, और जहां जहां पे अपन चिकट पट्टी लगाते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, वहां का सब स्किन केयर करेंगे, अल्सर्स वुंड्स कम होगा पेशेंट्स को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हम पेशेंट को इंसानियत और पेशेंट को ह्यूमैनिटेरियनली देखते हैं, नॉट जस्ट बेड नंबर, आईसीयू नंबर 1 2 3। ये इंपॉर्टेंट है कि हम पेशेंट्स को, क्योंकि कल हम वो बेड पे रहने वाले हैं और हमको भी कोई ऐसे ट्रीट करे तो हमको, हमने जो दिया है वो ही हमको घूम फिर के आने वाला है। तो हम अगर प्यार और कंपैशन, दया, इज्जत, मर्यादा से हमारे पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे तो वही केयर और कंपैशन घूम के हमारे पास आएगा। सो अभी जो सिचुएशन है वो हमारा पेशेंट रमेश, वो और भी उनका कंडीशन और भी बदतर हो गया है, और अभी जो है पेशेंट के डॉक्टर्स, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशेंट का जो कंडीशन है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी फैमिली बता रहा है कि उनको और ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं देना है और प्लीज पेशेंट को कंफर्टेबल रखिए। तो आप बताइए, क्या ये पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव है अभी के हालात में, क्या हम उनको घर भेज सकते हैं? अगर घर भेज सकते हैं तो कैसे भेजेंगे? हम डॉक्टर्स होते हुए ये बहुत मुश्किल है और इट इज वेरी डिफिकल्ट। हमने बहुत से ऐसे केसेस सुने हैं हमारे आसपास में कि पेशेंट्स जाते हैं, ये बीमार होते हैं और फिर उनको इतना आइसोलेट किया जाता है कि ना वो फैमिली को देख पाते हैं, ना बात कर पाते हैं, और फिर सडनली ये कोविड की सिचुएशन में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि और लोगों को भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दिस इज नॉट पॉसिबल। हालांकि एज डॉक्टर्स, क्योंकि हम लोग पेशेंट के साथ हैं, हम उनको कैसे जीवन का अंत का ट्रीटमेंट बराबर दे सकेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? सो ये घर क्यों नहीं ले जा सकते हैं, इसके बारे में ये स्लाइड है कि बेसिकली घर में कैसे हैंडल करेंगे, उनके सिक्रीशंस जो बहुत इन्फेक्टिव रहेंगे वो कैसे हैंडल करेंगे। घर में आजकल कोई डॉक्टर नहीं आ पाएगा, तो इन ऑल दिस कंफ्यूजन इट इज बेस्ट टू टेक केयर ऑफ दीज पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। और जब पेशेंट का जीवन का अंत हॉस्पिटल में होता है तो नर्सेस और डॉक्टर्स की जिम्मेदारी बनती है कि पेशेंट्स को जितना पॉसिबल हो सके एकदम इज्जत वाला, मर्यादा पूर्वक, दया पूर्वक अंत दे। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो हमको ही ये इस बारे में सीखना है। तो हम कैसे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम ये सीखें कि कैसे ये दे सकते हैं। उसका बिगेस्ट पिलर है कम्युनिकेशन। तो आपको बात, जैसे कल भी बताया, बात करना है। अनफॉर्चुनेटली उसमें भी तकलीफ है, क्योंकि पेशेंट भी मास्क पहना हुआ है, डॉक्टर लोग भी मास्क पहने हुए हैं, और पेशेंट और डॉक्टर की मुलाकात पहली बार होती है, तो हम कैसे उसके साथ रिश्ता बनाएं। बट हमको टाइम भी नहीं मिला जाता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पूछें पेशेंट क्या चाहता है, फैमिली क्या चाहती है, पेशेंट के बारे में उनकी जानकारी हम सुने, उनको जो बताना है हम उसके लिए टाइम रखें, और हम उनके लिए एक दयापूर्वक और क्या शांति से उनका इच्छा, उनकी भावनाएं, उनका जो भय है और उनकी जो घबराहट है वो सुने। शायद हम उसका सबका आंसर नहीं दे पाएंगे, बट एटलीस्ट सुन के हम उनका एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो लोड है वो कम कर सकते हैं।
तो बात करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना हो सके हम पेशेंट और फैमिली को जुड़ा रखने की कोशिश करें, वो टेली कम्युनिकेशन, जूम, या कल जैसे डॉक्टर बीजू ने बताया, एक टाइम फिक्स करके आपके टीम मेंबर एक एक पेशेंट के रिलेटिव को फोन करके उनको अपडेट देते जाए, तो उनको भी तसल्ली मिलेगी कि उनके पेशेंट का हाल उनको डेली मिल रहा है। और सिमिलरली जैसे आप अगर सोचे आप उस फैमिली के पोजीशन में है जिनका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में है, तो सोचिए आपको कितना तनाव होगा। तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरत है। फैमिली को भी साइकोलॉजिस्ट के साथ कनेक्ट करके उनके तकलीफ को सेटल करना, क्योंकि ये बहुत सडनली पेशेंट बहुत बीमार हो जाते हैं। तो ये सब जैसे व्हाट्सएप हुआ या जूम कॉल हुआ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ लाइफ केयर में, क्योंकि हम सिर्फ पेशेंट ही नहीं, पेशेंट की फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं। एंड आपको ही डिसाइड करना है, जैसे डॉक्टर रूप ने बताया कि ये जो एंड ऑफ लाइफ केयर है, कि क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कौन आईसीयू जाएगा कौन नहीं? ये पेशेंट का डिसीजन होना चाहिए। और बहुत सारे विदेशों कंट्री में जो कोविड के पैंडेमिक से गुजर चुके हैं, जैसे इटली, जैसे इंग्लैंड, उन्होंने बुजुर्गों को आईसीयू लेके ही नहीं आए। उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया कि 80 साल के बुजुर्ग या 75 साल के ऊपर बुजुर्ग का आईसीयू में जाना मुनासिब नहीं है। तो काफी चर्चा हुई फिर कि क्या ये सही है, क्या सिर्फ उम्र के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि ये पेशेंट बचेगा कि नहीं? तो इसीलिए हमको ये एथिकल जो कंफ्यूजन है, ये सॉल्व करने के लिए बात करना जरूरी है। पहले से ही हम एनकरेज करना चाहिए हमारे घर के बुजुर्गों से के साथ कि आप क्या चाहते हैं आपकी जिंदगी से, जो कोविड-19 से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। बट मेरा ये सेशन से यही उम्मीद है कि आप जो भी सुन रहे हैं वो खुद अपने बारे में सोचें, क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके फैमिली के लिए। और आप, आई नो ये मौत और मृत्यु के बारे में बात करना कठिन है, बट करना जरूरी है। ये डॉक्टर रूप, यू वांट टू कम इन? या ये सिर्फ ये जो हम बता रहे हैं कि ये सब हॉस्पिटल में हैंडल करना, ये एक्चुअली बाकी पैलिएटिव केयर में हम जहां तक हो सके घर पर हैंडल करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ये कोविड के सिचुएशन के लिए ही इन्फेक्टिविटी जो है, इसीलिए ये हॉस्पिटल में हैंडल करा जाता है। नहीं तो जहां तक हो सके पैलिएटिव केयर हम घर पर अरेंज करने की कोशिश करते हैं। Dr. Raju, Yeah, can I add something? मैं डॉक्टर चारू सिंह हूँ। मैं जैसे डॉक्टर रूप ने बताया कि जो पेशेंट बहुत सीरियस है या एंड ऑफ लाइफ के पास है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस फिलहाल कहते हैं कि उनको घर पे ना भेजा जाए, क्योंकि जब इंसान गुजर जाता है तो उनके बॉडी फ्लूइड्स रिलीज होते हैं और उसमें बहुत हाई क्वांटिटी होता है वायरस का। सो उस इंसान की बॉडी को, फैमिली को सिर्फ ऐसे ही पकड़ा देना, पूरी फैमिली को खतरे में डालना पड़ता है। तो गवर्नमेंट रूल्स, क्योंकि जब शुरुआत में पेशेंट्स की कमी थी, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट अथॉरिटीज की थी कि जिसका बरियल हो उसको बरी किया जाए, जो हिंदू हैं उनको क्रिमेशन करना है तो वो किया जाए। पर जैसे आप देख रहे हैं मुंबई में, दिल्ली में, तमिलनाडु में केसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि हेल्थ प्रोफेशनल्स इस चीज को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं। तो वो घर पे रिकमेंड करते हैं सिर्फ माइल्ड सिचुएशन में। और हॉस्पिटल में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनको प्लास्टिक के कवरिंग में रैप करके उस पे सोडियम हाइपोक्लोराइड स्प्रे करके एक और प्लास्टिक के बैग में कवर करके विद जिप उसको फिर से सोडियम हाइपोक्लोराइड से स्प्रे करके उसके बाद पार्थिव शरीर फैमिली को दिया जाता है। थैंक यू चारू। तो ये कहने का मतलब है कि क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो आईसीयू में हैं या हॉस्पिटल में हैं, उनकी मृत्यु होती है तो इट्स प्रेफरेबल कि उनका एंड ऑफ लाइफ केयर इज डन एट हॉस्पिटल। जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस, वी होप कि वो अच्छे हो जाते हैं, तो उनकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है अगर वो सेल्फ क्वारंटाइन और आइसोलेट करें। तो क्रिटिकली इल पेशेंट्स, इट इज नॉट एडवाइज टू गेट देम होम। सो वी हैव टू फोकस। इसीलिए मैंने बोला कि जिम्मेदारी जो एंड ऑफ लाइफ केयर की कोविड सिचुएशन में है वो डॉक्टर्स, नर्सेस,
काउंसलर्स और इन पे ज्यादा पड़ती है, क्योंकि वो लोग सब एडमिटेड रहते हैं हॉस्पिटल में। तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैंने वापस बताया कि पेशेंट और फैमिली मेंबर्स, पेशेंट शायद इतना इन्वॉल्व नहीं हो अगर वो बहुत क्रिटिकल हो, बट फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है ऐसे कि पेशेंट्स लेके जाते हैं और फिर अस्थियां भेज देते हैं, तो कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं होता है। बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे डॉक्टर चारू ने बताया कि इतने ज्यादा पेशेंट्स हैं, तो हम किस किस के हाथ रखें? क्योंकि इंडिया में वैसे भी स्टैटिस्टिक्स ये है कि सिर्फ 0.8 डॉक्टर्स हैं हर 1000 लोगों के लिए, तो वैसे भी डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स भी बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टर्स को भी मेंटल फ्रस्ट्रेशन और टायर्ड और ये सब हो रहे हैं, तो इट इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन। बट जितना पॉसिबल हो हम लोग अगर दया, करुणा और कंपैशन से काम करें, जो भी सामने का पहाड़ है वो थोड़ा इजीली हम क्रॉस कर सकते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम बात करें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे चल के जब रमेश अनफॉर्चुनेटली अभी बिकॉज उनकी तबीयत और बिगड़ गई है, हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं देके वो गुजर गए हैं, और अभी जो है आप पेशेंट के साथ, जो कि बेरीवमेंट जो पेशेंट्स फैमिली को जाके मिलना और उनका जो पीरियड रहता है किसी का मृत्यु होने के बाद, वो इम्पोर्टेंट है। एंड पेशेंट्स का फैमिली को बहुत दुख हो रहा है कि कोई उनको नॉर्मली नहीं ट्रीट कर रहा है, कि कोई उनसे बात नहीं कर रहा है। ये स्टिग्मा जो है ये कोविड के साथ, ये किसी का फॉल्ट नहीं है कि उनको कोविड हो गया है, ये जो स्टिग्मा है ये बहुत डिफिकल्ट है, और ये भी हम पैलिएटिव केयर फिजिशियंस हैंडल करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे ऐसे रिलेटिव्स को जो ऑलरेडी हताश हैं उनके फादर के गुजरने के, और अभी उनके नेबर्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं, प्लस रूल है कि 10 से 15 लोग से ज्यादा नहीं आ सकते हैं अंतिम संस्कार के लिए। और आप जानते हैं कि इस मौके पर ऐसे जब कोई गुजरता है, कभी भी नॉर्मल सिचुएशन में जब लोग आते हैं तो एक तरह की तसल्ली मिलती है, जब घर भरा रहता है, लोग आते हैं, आपका पूछताछ करते हैं, कोई खाना देता है, कोई चाय पिलाता है, ये बहुत कम्युनिटी सपोर्ट जो है वो बहुत फायदा होता है आपका दुख थोड़ा कम करने का। वो आदमी का जाना तो कभी कोई भर नहीं सकता है, बट थोड़ा दुख कम करना, आपका दुख शेयर करने में, वो भी ये कोविड ने हटा दिया है। तो आप कैसे मैनेज करोगे ऐसे हताश, रिजेक्टेड, दुखी परिवार को? ये जरा कुछ कोई चैट बॉक्स में बोल सकता है? I'll say something. आप में से कितने लोगों ने, जब समझ लो आपके कोई पेशेंट का अंत हुआ है आपके केयर में, तो आप उसके बाद फैमिली से कम्युनिकेट करते हो, उनसे बात करते हो, उनको फोन करते हो कि हम समझ रहे हैं आपको क्या हुआ है, जो भी है, लेकिन सहानुभूति दिखाना है, जो भी आप करे हो क्या? किसी ने अगर ये करा है, ऐसा पेशेंट नहीं जो आपके पहचान का हो, जहां आपको पेशेंट से दूसरी कोई पहचान नहीं है, सिर्फ बीमारी की वजह से, किसी ने करा है ये? राजम, चैट में डॉक्टर रूप क्या बोल रहे हैं कि हम ऑफन पेशेंट के साथ ना समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। एक सिंपल फोन कॉल बाद में, या आप पेशेंट के रिश्तेदारों को बता देते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया, उसके बाद उनपे क्या बीतती है, तभी नहीं तो 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, तो बहुत फर्क पड़ता है पेशेंट्स को कि याद रख के आपने उनके दुख में शामिल हुए हैं, स्पेशली कोविड टाइम में, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी नहीं आ सकते हैं, ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं, और जहां देखो सबके घर में अच्छे लोग, जो स्वस्थ हैं वो भी, जो डॉक्टर हैं वो भी, जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, जिनके पास काम है, जिनके पास काम नहीं है, सब लोग एक तरह के हताश में हैं, एक तरह के कंफ्यूजन में हैं, एक तरह के डिप्रेशन में हैं, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं है कि ये महामारी कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, कितने दिन चलेगी, किस किस को लेके डूबेगी, तो ये सब कंट्रीब्यूट करता है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस समय हम सब एकजुट रहे, हमारे पेशेंट्स के साथ रहे, हमारे पेशेंट्स के रिलेटिव के साथ रहे, और एक दूसरे को मदद करे, क्योंकि ये बहुत बहुत तकलीफ है, और ये तकलीफ हमें पता ही भी नहीं कि कितने साल, कितने महीने, कितने साल चलेगी, क्योंकि एक वैक्सीन ही है
जो हमें इससे निकाल सकती है, और वैक्सीन को आने में 1 साल 1.5 साल लग सकता है। तो इस बीच हम एक दूसरे का कैसे सपोर्ट करें, और ये बार बार आएगा हमारी जिंदगी में, स्पेशली डॉक्टर्स और नर्सेस, क्योंकि हमको रोज हॉस्पिटल जाना है, करेक्ट? तो हम गुस्सा, एंगर, हमारा भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहेगा, वो सब कम करने के लिए हम एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तो प्लीज फील फ्री कि आपके मन में जो भी है प्लीज शेयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एटलीस्ट एक दूसरे का सुन के आपका दुख कम कर सकते हैं। एंड देयरफॉर इट इज, ये नहीं है कि अगर पढ़ा लिखा है तो दुख नहीं होता है, ये टोटल ह्यूमन एक्सपीरियंस है, किसी को भी हो सकता है, और ये सब कुछ इफेक्ट करता है। खाना पीना नहीं होता है, नींद नहीं होती है, किसी को मिलने का नहीं इच्छा होता है, कुछ सूझता नहीं है। तो ये ग्रीफ जो है ये हम सबको इवॉल्व कर रही है, और स्पेशली जो पेशेंट्स अपने फैमिली मेंबर को खो चुके हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दुख, ग्रीफ जो है, हम इवन अमंगस्ट our colleagues etc, because they are also, सब लोग ये इसमें साथ में है। ये जो बीमारी है वो सबको लेके चल रही है, एंड वी डोंट नो कब तक चलेगी, इसलिए हमारा तकलीफ और तनाव सिर्फ बढ़ रहा है। एंड जैसे डॉक्टर चारू ने भी बताया कि मौत के बाद जो है, जैसे मैंने भी बताया पहले कि लोग नहीं आ पाते हैं, जूम कॉल से बरियल देखा जा रहा है, तो सिर्फ और अननोन आदमी, मतलब जिन जो हॉस्पिटल के स्टाफ हैं वो बरी कर रहे हैं या वो क्रिमेट कर रहे हैं। हमारे क्या बोलते हैं, रिचुअल्स में अंतिम संस्कार को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सो दैट जो आत्मा है उसको शांति मिले, और वो सब इस पैंडेमिक में थोड़ा उसका भी इफेक्ट होने लगा है। तो ये सब काफी दिनों तक पेशेंट्स के फैमिली को क्लोजर नहीं मिलती है, क्योंकि बॉडी नहीं देखते हैं, उस पे रीति रिवाज नहीं कर पाते हैं। तो ये सब भी ध्यान पे रखते हुए हमको पेशेंट्स की हेल्प, पेशेंट्स की फैमिलीज की सपोर्ट करना जरूरी है, जो एक एंड ऑफ लाइफ केयर, पैलिएटिव केयर के एस्पेक्ट से हम देखते हैं। तो सिंपल टेक होम मैसेजेस इज, हम पेशेंट की आराम पे फोकस करें, पेशेंट को वही करें जिससे उसका फायदा हो, नुकसान नहीं हो, और जो वो चाहता है। अननेसेसरी आईसीयू इंटरवेंशन ये सब करके पहले हम पेशेंट के आउटकम के बारे में सोचना चाहिए, पेशेंट के फैमिलीज को बता के डिसीजन लेना चाहिए, और जो भी वो डिसाइड करते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके दुख की घड़ी में हम उनको सपोर्ट करना चाहिए। आई नो ये टॉपिक बहुत हेवी हो गया है, बट इसलिए मैं सोच रही थी आपके जो भी डिस्कशंस हैं वो हम चालू रखेंगे, क्योंकि टाइम शायद है हमारे पास और 10-15 मिनट। बट इस बीच जस्ट मूड लाइटन करने के लिए, क्या आप लोग में से कोई है जो बॉलीवुड पिक्चर में से नाम बता सकते हैं जो पैलिएटिव केयर के कॉन्सेप्ट में बना हो? चैट बॉक्स में डालिए, या ऐसा कोई गाना जो आप गुनगुना सकते हो जिसमें मृत्यु या मौत या जिंदगी के बारे में कुछ है। आप प्लीज आपका माइक अनम्यूट करके गा सकते हैं। उसके पहले मैं ही शुरुआत कर देती हूँ एक गाना, अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि ये बहुत हैवी टॉपिक है, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि थोड़ा लाइटन हो जाए, सो दैट यू कैन एब्जॉर्ब, और फिर आपका क्वेश्चंस आंसर करते हैं। सो डॉक्टर रूप सजेस्टेड कि मैं आनंद का गाना गाऊं, एंड आनंद ऐसी पिक्चर है, अगर आपको याद है, अमिताभ बच्चन को डॉक्टर रहते हैं और राजेश खन्ना को टर्मिनल कैंसर है, और राजेश खन्ना घर पे ही गुजर जाते हैं बिना कुछ सीपीआर किए या रिससिटेशन, तो आराम से अपनी बेड पे लास्ट सांस लेते हैं, विच इज वेरी मच व्हाट वी वांट इन पैलिएटिव केयर। तो मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ, और होपफुली आप लोग में से भी कोई एक आध मुझे इसके बाद ज्वाइन करे। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। एक्सेलेंट, कोई और ज्वाइन कीजिए प्लीज। यस मैम, आई एम हियर, डॉक्टर प्रशांत चौहान। बोलिए, आप भी कुछ गाइए प्लीज। कंप्लीट कर रहे थे और तो कुछ आ नहीं रहा है। फिर से गा दीजिए सेम गाना। जिंदगी कैसी है पहेली आए, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। का एक वर्स भी गा लीजिए अगर आपको आता है, जब तक कोई और सोच रहा होगा शायद। या
उधर से अभिजीत। आपने मेरी बकवास इतना लंबा सुना तो मैं ही एक और गाना गा दूंगी, नहीं तो वो भी मैं वॉर्न कर रही हूँ, तो प्लीज जरा कोई और गाइए। वन मोर सॉन्ग मैम, जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर। गाइए गाइए, गुनगुनाइए। कोई समझा नहीं, कोई जाना जाना नहीं, नहीं है ये कैसी इधर चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई। कोई Thank you for sharing. Anything more, Dr. Charu, Rajni, Roop, you want to add, which I missed in the chat box? डॉक्टर चारू आयु, आपने ना ऑनलाइन मैंने चैट में कहीं पढ़ा, किसी ने लिखा था कि हमारी लाइफ, जिंदगी से मौत तक हम भगवत गीता से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपका विश्वास उसमें है तो और आपको उससे सपोर्ट मिलता है तो जरूर करिए। पर हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे व्यूज हैं हम अपने पेशेंट्स पर ना थोपें। अगर वो इस्लाम फॉलो करते हैं या क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं तो उनके अलग रीति रिवाज होते हैं, हमें नहीं मालूम हो सकते। पर अगर हम अपने उनके परिवार वालों से पूछ सकते हैं कि इस समय हम क्या कर सकते हैं आपके पिताजी के लिए या आपके भाई के लिए, तो उनके लिए ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। पर हमें अपने जो वैल्यूज हैं या व्यू पॉइंट्स है किसी पे थोपने नहीं चाहिए या किसी को जबरदस्त सिखाने नहीं चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में जब जब किसी ऐसी सिचुएशन में इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इंसान को टाइम नहीं मिला मेंटली ये सारी चीजें प्रोसेस करने का, जब किसी को लंबी बीमारी होती है जैसे डॉक्टर राजन और डॉक्टर रूप ने कहा, तो परिवार वालों को समय मिलता है और एक टाइम पे वो ये भी सोचते हैं कि वो इतना तड़प रहे हैं, शायद मौत उनके लिए एक रिलीफ हो। पर कोविड के अंदर उतना टाइम नहीं मिलता है कि फैमिली मेंबर्स अपने आप का मनोबल बैलेंस रख सके या जो आप इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं वो सारा अब्सॉर्ब कर सके। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली देते रहना चाहिए। और जैसे डॉक्टर चारू बता रही हैं, हम एनीवे आई थिंक हमारा डिसीजन और हमारा इन्फ्लुएंस और परसेप्शन पेशेंट पे नहीं लादना चाहिए, उनका ओपिनियन लेने की मोर एंड मोर कोशिश करना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा ये लगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेली प्रैक्टिस में ही इंपॉर्टेंट है। और ये बड़ा डिसीजन जो है एंड ऑफ लाइफ, जीवन का अंत, वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पेशेंट्स का सुने। हाँ पुष्पा, आप गा के सुनाइए, एक दिन बीत जाएगा। हेलो पुष्पा सैनी, उनको नहीं अनम्यूट। और कुछ क्वेश्चंस हैं? शी इज सेइंग नो मैम। और कुछ क्वेश्चंस हैं किसी को? Anything that has to be picked up on the chat? तो thank you very much. और कुछ questions हैं या opinions, comments किसी को chat करना है about end of I'd like to share something, Rajam. Yes. तो डॉक्टर रूप ने और आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया था कि हम फैमिली के साथ में इस हमारे पेशेंट के गुजर जाने के बाद में भी अगर हम रीच आउट करते हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं, एक पुरान बहुत टाइम से ही आता गया है कि हमारे मेडिकल टीचिंग में हमें थोड़ा डिटैच्ड या डिस्कनेक्टेड रहने का वो एक आइडियल बताया गया था कि नहीं, हमें बहुत इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए फैमिली पेशेंट्स और उनके फैमिलीज के साथ में। लेकिन
इसके रीजन क्या था, ताकि हम ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करें कि पेशेंट के ख्याल में हम हमेशा ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करें और उनके लिए जो सही है वो करें, हम अपने इमोशन से नहीं काम करें। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम फील नहीं करते हैं पेशेंट के लिए, हम ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करते हैं लेकिन हम फील करते हैं। कई बार पेशेंट्स के फैमिलीज को बहुत रिलीफ मिलती है ये जानते हुए कि हमें भी दुख होता है जब हमारा पेशेंट चला जाता है। तो जब हम उनको एक बार फोन करके बोलते हैं कि हम आपके दुख में भी शामिल हैं, कि हमने एक्नॉलेज किया कि ये इस इंसान की लाइफ में क्या बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था बहुत सारे दूसरे लोगों की लाइफ में, और हम उनके साथ में उनके दुख में भी हैं, तो उन्हें बहुत रिलीफ मिलती है। सोचिएगा कि आप अगर ऐसा कर पाए अपने डेली प्रैक्टिस में, ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है आगे ले जाने के लिए। और पेशेंट्स को समझ में आता है आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके आई कांटेक्ट, आपके स्माइल और आपका जो बात करने का तरीका है कि आप उनके कंसर्न में हैं, कि आप उनके बारे में सोचते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ, जैसे डॉक्टर रजनी ने बताया, कि इमोशनली कनेक्ट हो, बट द फैक्ट कि आप केयर करते हो ये कम्युनिकेट हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सामने वाला को समझ आता है कि आप केयर करते हो और उनके साथ हो जो भी वो डिसीजन लेते हैं। Hello, do you hear me? Yes, Dr. Tripathi. Yes, I am Dr. Tripathi. I am the pediatrician here in the Rishikesh, Yes. in Dehradun. Yes. पैलिएटिव केयर में मेरे को स्टडीज मिली थी और मैं NHM जो हमारा उत्तराखंड है उसके नेशनल हेल्थ मिशन, हाँ जी, yes. तो मेरे को उसमें सर्टिफिकेट भी ग्रांट हुआ है। yes. तो बहुत अच्छा लगा, मैं काफी आज पहली बार मैंने ज्वाइन किया हुआ है। okay. तो पुराना सारा रिव्यू मेरे सामने आया और Very good. तो एक गीत है पैलिएटिव केयर से मुझे कुछ कंसर्न है। हाँ. जो अभी हमारे पेशेंट हैं उनकी रमेश, उनकी अभी डेथ हो गई है, आपने बताया है। हाँ. yes. तो एक ये जो गीत है, ये गीत संजीवनी पुस्तिका है शांति कुंज हरिद्वार, जो एक हाईएस्ट स्पिरिचुअल मिशन है। तो मैं कुछ लाइनें उसकी शेयर करता हूँ आपके सामने। जरूर करिए। प्रभाती कोई दूर गा रहा है, बड़ो सामने युग नया रहा है। नई रूपरेखा बनी जिंदगी की, नई चांदनी अब खिलेगी खुशी की। हृदय प्यार से मानवी का भरेगा, नमन सतधरा को गगन करेगा। नया चंद्रमा शांति बरसा रहा है, नया ज्ञान का सूर्य मुस्कुरा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत उम्मीद वाला गाना है और इट्स वेरी वेरी नाइस टू सी कि हम पॉजिटिव नोट पे एंड करेंगे और हम रमेश को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए I hand it over back to Smriti because she's I can see her. Yeah. Thank you, Raja. Thank you all of you, and I have to say that we have conducted so many echo training sessions through the Trivandrum Institute of Palliative Sciences. I have never heard singing on an echo session before, and I think this has been a really, it's all credit to the incredible facilitation that all of you have done, and clearly the topics as well as the way it's being taught has touched many hearts. So thank you to everybody for participating. Tomorrow's session is a very important session, which I think all of us can relate to. It's making sense of distress, and in the context of COVID-19, and the distress that we talk about will be the distress experienced by patients, by families, and by healthcare workers. So please do attend. I think it will be a very enriching session, and please do try and watch the webinar in advance and have a look at the ebook in advance as well. So thank you, and see you all tomorrow at the same time. Bye. Bye. And please fill in the feedback form. Yeah.
Right. Bye. Bye-bye to all of you from my side too. See you tomorrow.